नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन ऐसी कहानियाँ जो आपकी ज़िंदगी में आशा के नए रंग भर दें और आपको प्रेरित करें। जी हाँ, तो एक ऐसी ही कहानी के साथ फिर लौट आए हैं आपके पास। दोस्तों, ये कहानी है उदयपुर के रहने वाले अमित तलेसरा की। अमित तलेसरा पिछले 23 सालों से उदयपुर स्थित पायरोटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में कार्यरत हैं। ये यहाँ डायरेक्टर के पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको बता दें, ये इनका फैमिली बिजनेस है। जी हाँ, 1998 में 1998 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये इस कंपनी से जुड़े थे। इतने सालों में इन्होंने इस कंपनी को सफलता के उच्च मुकाम पर पहुंचाया। इनकी सफलता का एक ही मंत्र है दोस्तों, कि ये अपनी कंपनी में कार्यरत हर एम्प्लॉय को अपना फैमिली मेंबर मानते हैं और उसे उतना ही मान सम्मान देते हैं जितना वो अपने घर के बाकी सदस्यों को देते हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि इनकी कंपनी में ऐसे कई एम्प्लॉय हैं जो बहुत सालों से यहाँ कार्यरत है और यहाँ काम करके वो बेहद खुश हैं। जी हाँ, अमित तलेसरा एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा लाइफ के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना इन्हें पसंद है। ये समझते हैं कि हमें अपने अंदर हमेशा समर्पण का भाव रखना चाहिए और सीखने की क्षमता और इच्छा को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। और यही इनकी सफलता का मूल मंत्र रहा है दोस्तों, जिसे ये हमेशा फॉलो करते हैं। आइए मिलते हैं इनसे और इनकी ज़िंदगी के इस खूबसूरत सफ़र से जुड़ी कुछ अच्छी बातें, कुछ यादगार पल और दिलचस्प किस्सों के बारे में सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी ज़ुबानी। Hello to all viewers. I'm Amit Talesra. I'm director in Pyrotech Electronics Private Limited, and I'm with this group since 1998. That is for 23 years. I'm basically an instrumentation and control engineer from University of Pune, and I'm looking after my panel division exclusively. We are basically, manufacturer of control panel, control desk, RTD, thermocouples, compensating cables, large video screens, video walls, control room solutions, LED lights for many years. And our clientage are mostly power plants, fertilizer plants, cement plants, metros, defense, space, etc. And I did my schooling from St. Paul's from LKG to 12th, and I passed out 12th in 1994. Thereafter, I passed out my engineering in 1998, and after that I joined Pyrotech for 5 years. I was in electronic division, wherein I was involved in development of microprocessor-based products like alarm annunciator, flow totalizer, universal 4-wire converters, square root extractors, etc. And then after that, for 1 year, I looked after my PLC division. And then in 2003, I took over panel division. And since then, I'm looking after panel division. We basically belong to Udaipur. My great-great-grandfathers were from Udaipur only. I remember till my grandfather days only. And I was born in 1976 in a business family in Udaipur. My grandfather was a businessman, and he used to run a timber business. Then my grandmother, basically, she was very keen towards education. So she started thriving on education more. So my father and my chacha, they did their engineering from BITS Pilani, and thereafter my chacha did his MTech from IIT Bombay, and then they all started this business in 1976. And right from beginning, we were actually 3 brothers and 1 sister, and right from beginning, my grandmother and grandfather used to thrive upon for education only. So they wanted us to become a good engineer from reputed institutions like IIT or
BITS Pilani, but somehow due to competition we were not able to. But yes, we did our engineering from reputed universities. And during my childhood days, we used to play a lot. Many physical games were there, like cricket, table tennis, and badminton, and a lot of friends were there. So still missing those childhood days. But now, a different sort of environment has been there for children. They are formally playing the games, not not a gully cricket sort of thing, or like that. So we used to, all brothers and cousins, we used to roam about on cycles, on bicycles basically, and like that our childhood was there. See, right from beginning we were inclined towards engineering side, because during our school days, childhood days, we used to do many projects based on electronics and basically electrical side. So during our childhood days also, we used to read that electronics for you book, and lot of circuits were there inside it, like automatic doorbell and fire detection fire detection system, and using motors, and using motors you can have a small sort of TV sort of thing. Then some trolleys. So like that, we were very much inclined towards those things. And in 1985 we got our first PC, and it was installed in my house only. So we used to play a lot of games, and then slowly we came into this thing ki, okay, we need to learn many languages and other things. So based on that sort of upbringing, we were inclined towards the engineering. And since the family business was mainly on engineering side, so we were molded like that. Then after taking admission in college, we took my parents allowed me to take instrumentation and control engineering, which was the latest engineering at that time. And I completed my engineering in 4 years. And after that, I joined Pyrotech Group. At that time, the total strength was around 600. And after my joining until date, we had around 100 folds turnover, 80 folds to be precise. So 80 fold turnover we did. And I was basically interested in firmware designing. So we had a division, microprocessor based development department. So I joined there. I was there for 5 years. I developed around 36-37 products, and all based on microprocessor X51 core. I've written one book also on X51 core. Compiled all my experiences in Tech1. And then I was in PLC division. We started that PLC division, and after that I joined panel division. Now in panel division, lot of scope was there, and I added a lot of new products. So basically my interest was in development and designing. So here we developed a lot of products like seismically qualified control desks and panels for nuclear power corporation. Then some very special type of panels for submarines, like Scorpion grade submarines. So we supplied their power distribution boards, and we were first in India to perform such sort of tests. We were already supplying to missile launching, very special grade panels. Then
I think 99% of the power plants are having our products, and slowly with the team of engineers, we developed a lot of products, and we never said no to our customer for any sort of development activity. And our vision is to delight the customer. So we always try to give good technology, good quality, and honesty, integrity inside that package when we offer it to customer. So we have a lot of non-disclosure agreements with customer. We don't reveal any of the customers' intellectual property to other one. So based on this sort of trust, lot of government and public sector units are approaching us, and we are building a lot of products for them. Even for ISRO also we are doing, for defense also, for submarines, for missile launching, for nuclear plants. So very special grades panel and very special grade materials we are doing, and all technology is in-house. So we are totally indigenously developed products we are having. When I joined this company, family business, so people were quite helping towards me, and they render all sort of help and technical know-how also, which I lacked in college during my engineering. And तब एम्प्लॉयज़ का एक एक्सेप्टेंस लेवल काफ़ी अच्छा था, और हम लोगों की अच्छी एक बॉन्डिंग भी बन गई थी लोगों के साथ में। और हमारे कल्चर में ही है, जो हमारे फाउंडर डायरेक्टर्स हैं उन्होंने हमें यही सिखाया है कि आपका जो एम्प्लॉयज़ है, दे आर नॉट जस्ट एम्प्लॉयज़, दे आर मोर देन एम्प्लॉयज़, एंड इक्वली यू हैव टू ट्रीट देम लाइक फैमिली मेंबर्स। तो उनके सुख दुख के अंदर हम काफ़ी कोशिश करते हैं हेल्प करने की। सबकी तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन यस कोशिश करते हैं सबकी अपनी तरफ से जो भी हेल्प हो जाए। और इसीलिए 1976 में जब मेरे फादर उन्होंने जो स्टार्ट की, और जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर थे, जो 7-8 जनों की टीम लेकर जो उन्होंने चालू किया था 1976 में, वो आज भी हमारे साथ में। मैंने तो ऐसे लोग बाग हमारी कंपनी में देखे हैं जिन्होंने हमारी 4 जनरेशन देखी थी। एक एम्प्लॉय थे डूंगरलाल जी करके, उन्होंने मेरे दादाजी के साथ वर्क किया, फिर मेरे फादर के साथ आए, फिर मेरे साथ में हुए, फिर उन्होंने मेरी डॉटर का अपब्रिंगिंग देखी। तो आप देखो, उन्होंने हमारी फैमिली की 4 जनरेशन देख ली। और जब उनकी डेथ हुई थी, तब मैं और मेरे कज़न हैं, हम दोनों गए थे उनके वहाँ पर, करीबन 30-40 किलोमीटर दूर है उदयपुर से। तो उनके घर वालों ने उनकी अर्थी तभी उठाई जब हम लोग वहाँ आए। तो इतनी बॉन्डिंग टाइप क्रिएट करके रख रखा है। और ये ऐसा नहीं कि हम उस चीज़ का शो ऑफ कर रहे हैं कि यार बॉन्डिंग है, ये एक्चुअली जिसको बोलते हैं ना, अंदर से है। मतलब मैं भी यही चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन हॉरिजॉन्टल रहे और सब लोगों से हम कनेक्ट हो सकें। आज मैं करीबन एवरेज रोज का मैं करीबन 50 जनों से मिलता हूँ कंपनी के एम्प्लॉयज़ के अंदर से भी। और इतना आइडिया है कि उनकी शक्ल सूरत देख के आइडिया लग जाता है कि यार कुछ ना कुछ दुख दर्द होगा या नहीं होगा। तो कितनी बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इंडिविजुअली उस चीज़ को लेकर भी। एक्चुअली प्री कोविड जो हमारे दूसरे जो साल थे, उसमें हमने काफ़ी एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ा के रख रखे थे। जैसे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हो गया, कैंटीन हो गया, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस विच वर नॉट रिलेटेड डायरेक्टली विद प्रोडक्टिविटी और विद ब्रांड प्रमोशन। तो हमने कोविड के बाद उन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को हमने कर्टल डाउन किया, और हमने शिफ्टों के अंदर हमने प्रोडक्शन चालू किया। उन शिफ्ट में प्रोडक्शन चालू करने से ये हुआ कि हमारी जो मशीन्स थी वो 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होने लग गई थी। पहले 10 घंटे की एक शिफ्ट हो गई थी, बहुत पहले चलती थी। फिर हमने अभी 24 आवर्स की शिफ्ट हमने करी, तो उसमें हमने
चुनिंदा एम्प्लॉयज़ को ही बुलवाया जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, और उसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी कॉस्ट आई मैन पावर से रिलेटेड वो काफ़ी कम आई, और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा। ऑर्डर्स तो है ही है हमारे पास, करीबन 2 साल की ऑर्डर बुकिंग है, और 3 महीने क्योंकि कुछ भी इन्वॉइसिंग नहीं हो पाई थी, तो इसकी वजह से हमारे कस्टमर भी जब मई में जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलना चालू हुआ, तब कस्टमर्स भी काफ़ी उन्होंने डिस्पैच क्लियरेंसेस देना चालू किया, और हमने चीज़ बनाकर फास्ट स्पीड पे उनको डिलीवरी करना चालू किया। तो इससे कोविड के अंदर जो FY 2021 है उसके अंदर हमारी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही पिछले साल से, और हमने नई टेक्निक्स भी सीखी प्रोडक्शन की और मैन पावर हैंडलिंग की और ओवरहेड को कम करने की। तो इससे हमारा जो टर्नओवर था और वैल्यू जनरेशन था वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ। लॉकडाउन के टाइम पे 2 या 3 दिन तक तो हम घर बैठे रहे, और हम बैठ नहीं पाए करके, बच्चों ने बहुत जीना दूभर कर दिया। तो फिर फाइनली हम कलेक्टर साहब के पास गए, आनंदी मैडम थी, और उनसे कहा कि हम कोविड बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाएंगे, सोसाइटी को हेल्प करेंगे, और आप हमें फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दो। तो उन्होंने हमें 26 या 27 मार्च को 15 जनों के साथ में दोबारा फैक्ट्री ओपन करने की परमिशन दी, और उस दौरान हमने अपने आप को हमने काफ़ी स्टडी के अंदर टाइम लगाया कोविड पैंडेमिक में हम पब्लिक को कैसे हेल्प कर सकते हैं। हमने 2-4 लो कॉस्ट इक्विपमेंट्स बनाए, सैनिटाइजिंग के आइटम्स बनाए। जैसे हमने एक सैनिटाइजर स्टैंड बनाया, काफ़ी लो कॉस्ट था, तो वो हमने बना के डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर हमने अल्ट्रावायलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाए। तो ये अल्ट्रावायलेट और ये जो प्रोडक्ट्स बनाने में हमें करीबन 2 महीने लग गए। अगर कोविड नहीं होता तो ये प्रोडक्ट्स हम बना नहीं पाते, और ये प्रोडक्ट काफ़ी इफेक्टिव है। इसको हमने करीबन 20-22 रिसर्च पेपर्स भी पढ़े हैं, फिर लैब्स में हमने टेस्ट करवाया, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में। तो कोविड के जो 3 मंथ्स हैं हमने ये अपने आप को ये प्रोडक्ट्स डेवलप करने में लगाया। फिर हमें काफ़ी टाइम मिल जाता था बच्चों के साथ में। नितिका इज़ माई वाइफ, कृति, नाइशा, दे आर माई डॉटर्स, एंड अद्विक इज़ माई सन। तो कृति के साथ में काफ़ी टाइम लगाया हमने। इकोनॉमिक्स भी मैंने पढ़ी, उसको भी समझाई इंजीनियर होने के बाद भी। तो लाइक दैट थिंग्स वेंट ऑन। चाहे आप जॉब करना चाहें, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहें, 3 स्किल्स तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ लोगों में भी डेवलप करें। एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सेकेंडली उसमें डेडिकेशन होना चाहिए, और थर्डली उसमें लर्निंग की एबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए, एंड तक रहनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ हैं तो इसके अंदर कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है। मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं, स्टार्टअप्स खोलते हैं अच्छे आइडियाज़ के साथ में, पर उनके माइंड में ये रहता है कि यार मेरे को स्टार्टअप बनाना है, फंडिंग लेके आनी है, बाद में उसको बेच देना है। तो कहीं ना कहीं डेडिकेशन की कहीं कमी रह जाती है। तो इसलिए आप देखोगे इंडिया के अंदर 1 in 1000 स्टार्टअप ही सक्सेसफुल रहा है। आप में डेडिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए। अगर आप में जैसे जॉब में आप जा रहे हैं तो शुरू के 3-4 साल, हम जैसे नए इंजीनियर्स आते हैं, कॉलेज के फ्रेश आउट्स हम रखते हैं, फ्रेशर्स रखते हैं, नए इंजीनियर आते हैं, तो हम उनको यही ट्रेन करते हैं कि शुरू के 3 साल आप इंजीनियर हो, डोंट ट्राई टू बिकम मैनेजर। आप इंजीनियरिंग सीखो, डेडिकेटेडली सीखो, स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि आज जो इनोवेशन की कमी है ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंजीनियर्स। मैंने जैसे ओवरऑल इंडिया के अंदर जो इंजीनियरिंग और इंजीनियर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ देखी हैं, तो उसमें क्या है, इंजीनियर जब ज्वाइन करता है तो शुरू के 3 या 4 साल ही वो इंजीनियरिंग एक्टिविटी करता है। उसके बाद वो मैनेजर बन जाता है, वो असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, तो वो फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर चला जाता है, और इंजीनियरिंग वहाँ पर उसकी बंद हो जाती है या इनोवेशन बंद हो जाता है। अभी करंट गवर्नमेंट जो स्कीम्स लेके आई है स्टार्टअप्स की, उसमें काफ़ी सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, आइडियाज़ पे, सर्विसेज पे, प्रोडक्ट्स पे, और लोग बाग उस पर वर्क कर रहे हैं। तो आई एम थैंकफुल फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग टू गवर्नमेंट। तो
एक डेडिकेशन टुवर्ड्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी और टुवर्ड्स इनोवेशन एक्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरी चीज है जो मैंने आपको बताई थी, लर्निंग की। लर्निंग हमेशा आपको जारी रखनी है। आप किसी भी एज पे हो, अच्छी चीजें आप हमेशा लर्न कर सकते हो। उसको लर्न करके आप इम्प्लीमेंट करो आपके प्रोफेशन के अंदर, चाहे वो शॉर्टकट मेथड्स हो, चाहे वो लॉन्ग कट मेथड्स हो, तो चाहे वो लेबर सेविंग डिवाइसेस हो। तो हर चीज के अंदर एक अच्छे से आप लर्निंग्स अवेलेबल है। इन चीज में आप यूट्यूब पे जाके आप बहुत अच्छी लर्निंग कर सकते हैं, आप बुक्स पढ़ के बहुत सारी लर्निंग कर सकते हैं, और इनोवेटिव चीज़ों को आप डेडिकेटेडली आप अपनी प्रोफेशन और जॉब में डालें। देखिए हमारा इसमें काफ़ी मतलब, मैं अगर मेरे करियर को देखूंगा पैरोटेक के अंदर, तो लेटेस्ट अभी हमने मतलब वी आर बेसिकली फर्स्ट इन इंडिया टू डेवलप लार्ज वीडियो स्क्रीन्स ऑन डायरेक्ट व्यू एलईडी बेस्ड। हमने इसका गवर्नमेंट से BIS लाइसेंस भी लिया है, रिसेंटली आया है, करीबन 2 हफ्ते पहले आया है। और दिस आई फील एज वन ऑफ माय बिगेस्ट अचीवमेंट, बिकॉज ये इंडिया में हमारे पास सारी फैसिलिटीज है बनाने की। इंडिया में ऐसी फैसिलिटीज दूसरों के पास कम है, और हम इसमें टोटली मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं और चले गए हैं। एंड चाइनीज डिपेंडेंसी या बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज से रिलेटेड डिपेंडेंसीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन है, उस हिसाब से हमने उसको अवॉइड किया है। नेक्स्ट हमने लार्ज वीडियो स्क्रीन्स बनाई थी, करीबन 5-6 साल हो गए उसको, अच्छा खासा मार्केट में चल रही है, और ये भी इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट किया है इसको। ये टोटली हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज थी। फिर हमने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट पैनल्स बनाए फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ये पहले गवर्नमेंट कंपनी थी ECIL, वो बनाती थी, लेकिन उनके पास टेस्टिंग फैसिलिटीज उस वक्त नहीं थी, तो वो खाली एनालिसिस करके देती थी। हमने करीबन 2400 mm साइज का कंट्रोल डेस्क बनाकर हमने CPRI बैंगलोर में टेस्ट कराकर, करीबन 14-15 न्यूक्लियर पावर के साइंटिस्ट भी वहाँ पे मौजूद थे। उस चीज़ को हमने प्रूवन किया कि हमारे जो पैनल्स है वो अर्थक्वेक जोन 5 तक के लिए वाइब्रेशंस जो है वो विथस्टैंड कर सकते हैं, तो पूरे पैनल में कहीं भी क्रैक नहीं आया। फिर हमने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, उसके लिए हमने EMC EMI बेस्ड पैनल्स बनाए, जो IEC 61000 4-2 से लेकर 4-13 तक सारे स्टैंडर्ड्स पे टेस्ट हुए हैं उनके, समीर चेन्नई में, तो उसमें वो 1 शॉट में पास हुए। तो हमने EMC EMI पैनल डेवलप किए हैं फॉर सबमरीन्स, जो वाइब्रेशन प्रूफ भी हैं और JSS पेंटा 5 टेस्टेड भी हैं। दिस इज हाईएस्ट मिलिट्री ग्रेड की टेस्टिंग होती है JSS पेंटा 5 से। देयर आर लॉट ऑफ फेलियर्स इन during product developments and even during the execution phase of orders, but we somehow overcome it, and it was not so easy to develop products. We failed 3 times, 4 times, 5 times, but ultimately we came up with a very rugged and very reliable product. Timely चीज़ों के साथ में हम मूव करते गए, और फेलियर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि उसके बिना आप सीख नहीं पाते हैं। कितनी बार हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए, जब हम लैब में लेके गए तो वहाँ पर वो फेल हुआ, वहाँ से हम लेके आए, हमने वापस दोबारा उस प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट किए हैं। हमने कोशिश करी कि वो लैब कंडीशंस फैक्ट्री में सिमुलेट करके उसको उसके कॉम्पेटेबल बनाया जाए उस स्टैंडर्ड के। तो जब हम यहाँ पर सक्सेसफुल हुए तब हमने वापस उसको लैब में भेजा। लैब में वापस कोई कमी खामी निकली, कुछ गैप निकले, उस गैप को हमने फुलफिल किया। तो ऐसे करके हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे कंप्लायंसेस क्रिएट करी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद उसको हमने आगे मार्केट में लॉन्च किया। रोल मॉडल ऐसे कुछ रहा नहीं लाइफ में,
बट हमने लर्निंग्स काफ़ी लोबाव से लिए हैं, और फेलियर्स से भी हमने काफ़ी लर्निंग ली है, और लोबाव से भी हमने लर्निंग ली है। जैसा कि पहले बताया था, हम इंजीनियर ही हैं, तो हमने कमर्शियल चीज़ें काफ़ी सारी सीखी हैं हमारे यहीं के इन हाउस लोबाव से। कमर्शियल डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से हमने काफ़ी कमर्शियल चीज़ें सीखी हैं। फिर हमने हमारी डिज़ाइंस के अंदर इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी हमने जो वर्कर लेवल है उनसे भी हमने काफ़ी सीखा है, हमारे इंजीनियर्स से काफ़ी सीखा है, एक्सपीरियंस इंजीनियर्स हैं यहाँ पे। तो वैसे ऐसे कोई रोल मॉडल रहा नहीं है, लेकिन लर्निंग्स हमने सब जनों से काफ़ी अच्छे ढंग से सीखी। देखिए, लाइफ में मिस्टेक्स तो हमने भी काफ़ी करी, ऐसा नहीं है मिस्टेक्स नहीं करी है, और उससे नुकसान भी हुआ है, पर्सनल वे में भी और कंपनी को भी। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें अगर हमें हाइपोथेटिकल टाइम मशीन मिले तो वो जाके हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और एन्जॉयमेंट के लिए तो मैं अभी भी मेरे स्कूल डेज में ही जाना चाहूँगा, जहाँ पर स्कूल के फ्रेंड्स के साथ में आज भी हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग्स है, और 10th 11th 12th वापस हम मैं रिपीट करना चाहूँगा। तो मतलब वो एक काफ़ी अच्छा, मतलब जिसको बोलते हैं ना, मतलब बिल्कुल एंजॉयबल ईयर्स मेरे लाइफ के वो थे। ऑब्वियसली कॉलेज के थे, बट कॉलेज में क्या है कि एक वो हमेशा स्ट्रेस रही है या प्रेशर रहा है कि यार आपको एक अच्छा परफॉर्म करना है कॉलेज में स्टडीज़ में, क्योंकि पापा ने टारगेट दिया था कि 60% अगर नहीं आएंगे तो आपको हम इंडस्ट्री में एंटर नहीं होने देंगे। तो वो 60% का एक हमेशा फर्स्ट क्लास का एक हमेशा प्रेशर रहा है। तो कॉलेज डेज थोड़े से वैसे निकले कि यार पढ़ाई की तरफ और मटेरियल इकट्ठा करने की तरफ ऑब्वियसली मस्तियाँ करी हैं, बट स्कूल में थोड़ा सा स्कूल वालों के साथ आज भी अच्छे से बॉन्डिंग है। जो लाइफ में एक बिल्कुल फिक्स सा ही एक मोटो है, वो ये है कि फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट। अब आपने अगर कमिटमेंट किसी के साथ कर लिया, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वाइफ हो, चाहे फ्रेंड्स हो, कस्टमर हो, तो उसको आप, या पेरेंट्स हो, उसको आपको हमेशा फुलफिल करके रखना है कमिटमेंट्स को। और ये चीज़ मैंने देखी है कि आप अपने कमिटमेंट्स को जिसको भी आपने दिए हैं वो अगर फुलफिल हो रहे हैं तो फुल इकोसिस्टम इज वेरी हैप्पी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। सेकंड चीज, मैं हमेशा लर्निंग्स में बिलीव करता हूँ कि आप हर चीज से सीख सकते हो और सीखते हो। देखिए, मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं ना मेरे प्लांट्स को ग्रो होते हुए देखता हूँ। मेरे को बोनसाई बनाने का काफ़ी शौक है, और मैं कोशिश करता हूँ फैक्ट्री के अंदर ही टाइम निकाल के, फैक्ट्री के अंदर मैंने थोड़े बना भी रखे हैं। और मुझे प्लांट्स का काफ़ी शौक है। मैं एक फ्रूट ऑर्चिड भी बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, अगर सक्सेसफुल होता है करीबन 250-300 मैं वहाँ पर प्लांट्स लगाना चाहूँगा। तो उसके लिए बेसिक तैयारी चल रही है। तो जब प्लांट्स के अंदर नई बडिंग्स आती हैं, नई लीव्स आती हैं, तो वो एक देख के काफ़ी खुश होता हूँ। और जब बोनसाई के अंदर भी ग्रोथ मिलती है बोनसाई को, तब भी वो एक बहुत अच्छा लगता है। तो अभी फिलहाल कंसंट्रेशन, क्योंकि ऑर्चिड बना रहे हैं, तो प्लांट्स की तरफ मेरा काफ़ी एक हुआ है। प्लस मुझे पेट्स पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम घर पे किसी कारण से ला नहीं पाते हैं। लेकिन बचपन में काफ़ी पेट्स रखे थे, तो उन पेट्स से काफ़ी स्ट्रेस रिलीफ होता है, और उनके साथ जितना टाइम दो उतना कम रहता है। तो वो भी एक अच्छा रिक्रिएशन का है। थर्ड चीज, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के और इंजीनियरिंग बेस से रिलेटेड अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके छोटे छोटे ढंग से इम्प्लीमेंट करना काफ़ी पसंद है। तो वो भी साथ में चलता रहता है। एक कोट एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे फादर ने ही मुझे बताया है, उन्होंने पढ़ा है। वैसे मैंने तो काफ़ी सारे कोट्स पढ़े हैं, काफ़ी सारे कोट्स अच्छे भी लगते हैं, पर ये कोट मेरे साथ काफ़ी टाइम से चल रहा है। उन्होंने इस चीज़ को एक कोट पढ़ के हमें भी, जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी फॉर्मल ट्रेनिंग, तब उन्होंने बोला था कि नेवर फूल अ कस्टमर।
ठीक है, वंस इफ यू आर फूलिंग अ कस्टमर ही विल कम, सेकेंड टाइम ऑल्सो ही विल कम, बट थर्ड टाइम ऑनवर्ड्स ही विल नॉट कम। तो मैंने इस चीज को भी सेम उसी ढंग से डाला है कि आप किसी को बनावटी वे में किसी के साथ झूठ मत बोलो अपना काम निकलवाने के लिए। तो ये चीज मैंने भी इम्प्लीमेंट करी कि मैं किसी को ना बेवकूफ बना के काम नहीं करवाता हूँ। अगर उसको कम देना होगा तो मैं कम दूंगा, लेकिन बोलूंगा उसको ये चीज, उसको कैरेट दिखा के मैं उससे काम नहीं करवाऊंगा, या कस्टमर को कैरेट दिखाकर ये चीज नहीं बोलूंगा कि साहब आगे देख लेंगे, ये ऐसा हो जाएगा। तो आई ऑलवेज बिलीव कि वी शुड नेवर फूल और वी शुड नेवर टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडीज लिबर्टी और एनीबडीज ट्रस्ट। तो लाइक दैट टाइप को देखिए, लाइफ लेसन्स को अगर मैं समराइज करूं और मैं अपनी और अपनी कंपनी की और मेरे साथ जो फुल इकोसिस्टम है, मेरे एम्प्लॉयज हो गए, मेरी फैमिली हो गई, मेरे पेरेंट्स हो गए, फाउंडर डायरेक्टर्स हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, इन सबको अगर देखते हुए देखें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इनोवेशन की तरफ, लर्निंग्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। मनी इज आउटकम ऑफ योर गुड वर्क। मनी की तरफ आप ध्यान देंगे तो आप नीचे जाएंगे, आपका डिटोरेशन होगा। अगर आप लर्निंग्स की तरफ, इनोवेशन की तरफ डेडिकेटेडली अगर आप अपने पैशन के पीछे पड़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा सक्सेस देगा। मनी आपको सक्सेस नहीं दिला सकता, आपको अपना पैशन सक्सेस दिलाएगा। दोस्तों, आप सुन रहे थे अमित तलेसरा की ज़िंदगी की कहानी, इनकी अपनी ज़ुबानी। जी हाँ, ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज़ रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जी हाँ, आपके पास भी मौका है अपनी कहानी हर शख्स तक पहुंचाने का, तो जल्दी से आप भी साझा करें अपनी कहानी हमारे साथ, क्योंकि कहानियाँ बदलती है सोच, पैदा करती है नया जुनून और ले आती है हर एक की ज़िंदगी में उम्मीद की एक नई किरण। तो जल्दी से सुना दीजिए आप भी अपनी कहानी। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। जी हाँ दोस्तों, अगर साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ संभव है। तो आप भी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर लौटेंगे आपके पास एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कहानियों का हमारा एक खास कार्यक्रम और लीजिए हर नई कहानी से हर दिन एक नई और सच्ची प्रेरणा। नमस्कार।